dear students. So we are doing our chapter life process from class 10th biology, and today's topic is transportation, that is transportation in human beings. So let's start. So let's start. So the topic transportation, students. Let me चलिए स्टार्ट करते हैं. Transportation in human beings, whatever food we are taking in after digestion, the nutrients will absorbed in blood के अंदर आ जाते हैं, and then second most important task is to transport the nutrients in body of the organism. So blood, that most important connective tissue, fluid connective tissue of our body, that helps in transport of food, oxygen, waste material in our body. And if we see blood is a fluid medium, तो उसमें जो liquid वाला part है बेटा, that is called plasma, and plasma helps in transport of foods, carbon dioxide, nitrogenous waste material, and oxygen is carried out by RBC, red blood cells, because red blood cells have hemoglobin Hb on their surface that helps in transport of oxygen, and many other substances like salt, ये चीज़ें भी transport होती है बेटा. And heart is the pumping organ which pump whole blood into our body. So let's study about heart. Heart के बारे में पढ़ते हैं बेटा. In humans there is a 4-chamber heart. Easy diagram आप इधर देख लीजिए. ये NCERT का internal structure of our heart is given. This is right atrium. This is left atrium. This is left ventricle. This is left. This is right ventricle, sorry, and this is left ventricle. Okay, so a total 4 chambers are present in birds and humans, because they require more energy as they are endothermal organism. So to maintain their body temperature they require more energy. और अगर हम बात करें फिशेस की, तो दे हैव 2-chamber हार्ट. अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, दे हैव 3-chamber हार्ट. एम्फीबियस 3-chamber हार्ट. इन क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन दैट हैव 4-chamber हार्ट. ठीक है, इन रेप्टाइल्स. The whole deoxygenated blood of our body comes with the help of vena cava and enters into right atrium. पूरा deoxygenated blood enter हो जाएगा वेना केवा से. कहाँ enter हो जाएगा बेटा? It will enter into right atrium. तो यहाँ पर वेल्व लगा होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व. कैसा वेल्व होता है? ट्राइकस्पिड वेल्व. ट्राइकस्पिड वेल्व यहाँ पर लगा है, and the blood will enter into right ventricle. Then the blood goes into lungs for oxygenation. lungs में चला गया. lungs के बाद oxygenated blood will enter in right atrium, and यहाँ पे हमारा bicuspid valve है. bicuspid valve यहाँ पर है. This is also called mitral valve. mitral valve है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ से blood आ गया left ventricle में, and finally there is aorta, largest artery, aorta. तो it will pump blood to the whole body. So देखिए right atrium में blood आया, यहाँ पर deoxygenated blood था, blue color से दिखाया, enters into right ventricle with the help of tricuspid valve. Then it will go into lungs में चला जाएगा. कौन लेकर जाएगा lungs में? pulmonary artery. Then oxygenated blood कौन लेकर आएगा? pulmonary vein. ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे. यहाँ पर वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और आर्टरी के अंदर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड आउट बाय पल्मोनरी वेन और एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में. यहाँ पर बाइकस्पिड वेल्व है जिसको मिटल वेल्व भी बोलते हैं. ब्लड कम्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फाइनली पम्प्ड इनटू होल बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ एओर्टा. ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है. क्या क्वेश्चन आता है? देखिए, दे आस्क कि व्हाई द लेफ्ट वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज कंपैरेटिवली थिक. लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है और राइट वेंट्रिकल की वॉल थिन होती है. व्हाई इट इज सो? बिकॉज बेटा राइट वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इन आवर लंग्स ओनली. राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है लंग्स में. वहीं अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, सो इट हैव टू पंप ब्लड इनटू अवर होल बॉडी पार्ट्स. तो इसलिए ये थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, पूरे हार्ट के ऊपर बेटा एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं. प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ओवर अवर हार्ट या ऑन अवर हार्ट इज पेरिकार्डियम. ठीक है, और उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है. गॉट इट? पेरिकार्डियम.
So heart is a muscular organ and it helps in transport of both oxygen and CO2, आपको पता है. And heart have different chambers to prevent oxygen rich blood from mixing with CO2. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ चला जाता है? लंग्स में. लंग्स में चला जाता है और वहाँ पर CO2 को रिमूव करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है? blood can oxygenated blood will enter into left side of our heart. So right side में deoxygenated blood है, lungs में जाएगा, oxygenation होगा, then it will come to left side of our heart. Oxygen rich blood is then pumped into whole body parts with the help of aorta. So all this is explained here. जो अभी हमने discuss किया है किस तरीके से blood आता है और oxygenation होता है. So you can also see transport and exchange of oxygen and CO2 here. कि how this blue part is showing deoxygenated blood and this red color part is showing oxygenated blood. ठीक है. Oxygen enters the blood in the lungs. आपको पता lungs में हमने topic respiration में भी किया है. Alveoli are present. They have a dense network of capillaries. Capillaries काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ present है. So whatever carbon dioxide they have, they will give it to alveoli and oxygen कहाँ चली जाएगी? Capillaries के पास. So this exchange is very beneficial for all living organisms that require oxygen for their respiration. So similarly birds and mammals, ठीक है, all birds and mammals have 4 chamber heart और इसी तरीके से उनमें ऑक्सीजन होता है. Fishes having 2 chamber heart, मैंने आपको बताया. They don't need of oxygen as required in, they require oxygen but they can do their work with the help of dissolved oxygen present in water. ठीक है. So for that they have to take water continually and gills will help to take oxygen. On the other hand हमारे हार्ट के अंदर ब्लड कितने टाइम्स एंटर किया था? 2 टाइम्स. देखिए एक बार हमारा ब्लड आया, इट एंटर्स इनटू द राइट साइड ऑफ आवर हार्ट, देन लंग्स में चला गया, देन अगेन एंटर्स टू द लेफ्ट साइड. सो डबल सर्कुलेशन रहेगा. डबल सर्कुलेशन हम इसको बोलते हैं बेटा क्योंकि हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर किया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. एक बार पहले राइट साइड में आया, देन लंग्स में चला गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन एंटर किया. तो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स दैट एक्सर्ट blood pressure, the force that the blood exert against the wall of blood vessel is called blood pressure. My dear students, suppose this is blood vessel. मान लीजिए blood vessel है, आर्टरी है और यहाँ blood flow कर रहा है. So the pressure that is exerted by the blood towards the walls of vessel, ठीक है, walls पे जो pressure लगेगा blood की वजह से, this is blood, this is blood vessel wall of blood vessel. So the pressure that is exerted by blood towards the wall of blood vessel is called blood pressure. ठीक है. And blood pressure is always greater in arteries than in veins. हमेशा arteries में blood pressure ज़्यादा होता है, veins में कम होता है. And कौन सा pressure है students ये? The pressure of blood inside the artery is during वेंटिकुलर सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टोल. वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर बनता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं. एंड रिलैक्सेशन की वजह से जो प्रेशर होता है वेंटिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. तो सिस्टोलिक प्रेशर दैट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन of ventricles, diastolic pressure that is due to relaxation of the ventricles. और systolic pressure generally 120 mmHg, Hg is mercury, and diastolic pressure कितना होता है? 80. तो 120/80 mmHg, ठीक है. This is normal range of blood pressure. Systolic pressure should be 120 and diastolic pressure should be 80. So the instrument that helps to measure the blood pressure को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड स्फिग्मेनोमीटर. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन. स्टूडेंट्स अगर 120
से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर है, सपोज 130 या 140 या 150 है, अगर प्रेशर rises above 120, so that is called high blood pressure and this is also called hypertension. क्यों हो जाता है बेटा? It is caused by the constriction of arterioles. जब हमारी आर्टरीज का अंदर कोई भी डिपोजिशन हो गई है, लाइक कोलेस्ट्रॉल या फैट डिपोजिशन जब हो जाती है, तो द स्पेस बिकम नैरो, बहुत ही कम स्पेस ब्लड के लिए रहता है. सो द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो एंड दिस में ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल ब्लीडिंग. ठीक है, अगर ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है ब्लड वेसल्स तो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा, सो इट विल एक्ट एज अ साइलेंट किलर और ये ब्लड वेसल की वॉल को रप्चर भी कर सकता है, कॉज इंटरनल ब्लीडिंग. तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर. ब्लड वेसल्स की बात करते हैं बेटा. ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारे पास ब्लड वेसल्स जो कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जहाँ ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वी हैव आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. हमारे पास 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स है. ठीक है, चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं. आर्टरीज आर द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से जो ब्लड लेकर जाती है, ठीक है, हार्ट टू बॉडी. तो कैसा ब्लड होगा हार्ट में? कैसा ब्लड होता है जो पंप होता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऐसा ब्लड कैरी करती है आर्टरीज. एंड क्योंकि हार्ट से जब ब्लड पंप होता है, सो इट हैव अ हाई प्रेशर, तो आर्टरीज की हमेशा वॉल्स कैसी होंगी? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में, थिक होंगी, इलास्टिक वॉल्स होंगी. और वेन्स की बात करें तो बेटा वेन्स कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ऑर्गन्स. ठीक है, यहाँ पे वेन्स की बात करें, सो बॉडी टू हार्ट. ठीक है, बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड आता है, तो ये कैसा होगा बेटा? डीऑक्सीजनेटेड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर होगा. ऑल राइट, सो दे हैव टू ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट. हार्ट के पास आएगा ताकि वो लंग्स के पास जा सके फॉर ऑक्सीजनेशन. तो यहाँ पर थिक वॉल्स नहीं होती बेटा कंपेयर टू आर्टरीज, तो दे हैव थिन वॉल्स और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है. दे हैव वेल्व्स, इनके पास बैक फ्लो टू प्रिवेंट बैक फ्लो, ताकि ब्लड बैक ना चला जाए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए इनमें वेल्व्स लगे होते हैं, सो दैट दे एंश्योर द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ताकि एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाए. जब वो ब्लड ऑर्गन्स या टिश्यू तक पहुंचता है स्टूडेंट्स, तो आर्टरीज तो अंदर एंटर नहीं करती विसरल ऑर्गन्स के अंदर, तो वहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को पहुंचाती है. 1 सेल थिक, बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक कैपिलरीज होती है बेटा. इनको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज. क्योंकि विसरल ऑर्गन्स के अंदर आर्टरीज और वेन्स एंटर नहीं करती, वहाँ पे क्या होता है? कैपिलरीज. लाइक अपनी आईज में देखे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, रेड कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आते हैं, दीज आर कैपिलरीज दैट helps in exchange of blood and all nutrients to the visceral organ. So the exchange of material between blood and surrounding cell take place through this thin cell wall. बहुत ही thin होती है बेटा, इनकी wall जो है बहुत ही thin होती है. And these capillaries बाद में जुड़ करके they make veins and they take blood away from the organ or tissue. Coming to blood platelets, बेटा आपको पता है we have 3 types of cells. हमारे पास blood के अंदर, ब्लड में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल: रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग. ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, जब इंजरी होती है तो ब्लड क्लोटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड प्लेटलेट्स. एक्चुअली व्हेनेवर वी आर इंजर्ड, वी स्टार्ट ब्लीडिंग. जब भी कोई माइनर कट लगा है या कोई इंजरी हो गई है तो क्या हो जाता है बेटा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. बट आपने देखा होगा विद इन 5 to 10 मिनट्स ब्लीडिंग स्टॉप्स. 5 to 10 मिनट्स में क्या होता है? अगर माइनर कट है सो ब्लीडिंग स्टॉप्स ऑटोमेटिकली, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. कैसे हो जाती है बताइए? ठीक है, कैसे हो जाती है? विद द हेल्प ऑफ दीज प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट्स वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी एंड दे प्लग द लीकेज. वो वहाँ पे जहाँ से लीक हो रहा है वहाँ से प्लग कर देंगी, क्लॉट कर देगी ब्लड को एट द साइट ऑफ इंजरी. तो ब्लड क्लोटिंग में एंड कुछ हमारे ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स भी हैं लाइक
फाइब्रिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, और फाइब्रिनोजन है, इसके अलावा थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन है, सो they helps in blood clotting. Another fluid in our body is lymph. Lymph is also another fluid that helps in transportation. Mainly, it is also called tissue fluid, and इसको हम interstitial fluid भी बोलते हैं क्योंकि cells के बीच में होता है. Interstitial fluid भी इसको हम बोलते हैं, and it is also called middleman of the body. मिडल मैन, क्योंकि ब्लड से टिश्यू तक कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है या वहां से कुछ भी लेकर आना है ब्लड के अंदर, सो इट इज कॉल्ड मिडल मैन ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो. ठीक है. So, though the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma proteins, blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form tissue fluid and lymph. It is similar to plasma of blood. lymph का nature कैसा है बेटा? It is similar to plasma of blood. Colorless होता है, इसमें कम proteins होते हैं. And lymph कहाँ flow करता है बेटा? lymphatic vessel capillaries के अंदर flow करता है from the intercellular spaces. And they will join to form large lymph vessels. बड़ी बड़ी lymph vessels होती है. Finally they opens into larger veins. lymph very important role प्ले करते हैं बेटा फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर. आपको पता है अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट दैट आर माइक्रोविलाई. ठीक है, क्या होती है? माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई आपने सुना होगा, दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. तो इनके अंदर क्या होता है बेटा? यहाँ पर अंदर they have a dense network or supply of lymphatic capillaries. इनको बोलते हैं lacteals. क्या बोलते हैं बेटा इनको? lacteals. And they play very important role in fat absorption. Important role in fat absorption. फैट एब्जॉर्प्शन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं लैक्टील्स. ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, तो नो सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. प्लांट्स के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लाइक हमारे अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स था, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है. सो व्हाट दे हैव टू एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड है या फोटोसिंथेसिस के बाद जो लीव्स में जो उनका फूड बनता है, दे हैव टू ट्रांसपोर्ट दैट, या दे हैव टू टेक रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मिनरल्स. तो कुछ चीज़ें हैं जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं. फॉर दैट दे डजंट रिक्वायर्ड एनी प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम. वहाँ पर क्या है? वेस्कुलर बंडल्स. प्लांट्स में क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, जिनको वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, इन द प्लांट्स. सो देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन, लाइक हमारी जो रूट्स हैं, रूट्स दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सॉइल, तो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है. वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन करती है, और वो कहाँ दे देते बेटा? जाइलम. जाइलम फिर पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. सिमिलरली लीव्स में फूड बनता है, लीव्स में फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है, तो यहाँ से प्लांट बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होता है. कौन करता है? फ्लोएम. फ्लोएम एंड जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट part of vascular bundle that helps in exchange of materials in the plants. ठीक है, देखिए plant transport system will move energy source from leaves to and raw materials from roots. ठीक है, तो ये दोनों ही पाथवे में कौन हेल्प कर रहा है? या तो जाइलम हेल्प करता है या फ्लोएम. जाइलम हेल्प्स in transfer from roots to all parts of plant body. Roots to all parts of plant body, and here phloem works from roots to all parts. Sorry, leaves to, not roots. From leaves to all parts. Leaves to all parts. It is from downward direction to upward, so it is unidirectional. Xylem का जो वर्क है वो कैसा है बच्चों? Unidirectional, from leaves
फ्रॉम रूट्स टू अपर बॉडी पार्ट्स, यूनिडायरेक्शनल। बट फ्लोएम का वर्क अगर हम बात करें सो इट इज बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि इसको लेटरल साइड्स में भी ब्रांचेस में भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना है। लाइक मैंने आपको भी बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सो मेन रोल प्लेड बाय जाइलम टिश्यू। जाइलम के पास बेटा 4 टाइप्स की सेल्स है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम इज अ, जाइलम कैसा टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें सभी सेल्स एक जैसी नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। सो जाइलम के पास कौन कौन सी सेल्स है देखिए, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। Xylem fibers are also called xylem sclerenchyma. क्या बोलते हैं? Xylem sclerenchyma. So tracheids and vessels play a very important role in transport, specifically vessels. So they form water conducting channels to all parts of plant body. So they take water and ions from the soil and transport to the upper body parts. So देखिए, the water and minerals move into the root from soil, and this is active transport. They require energy for this. This means there is a steady movement of water into roots, xylem and creating a column. ठीक है, एक कॉलम बन जाता है जिससे कॉन्टिन्यूटी में वाटर फ्लो होता है। एंड समवेयर ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पुल ऑल्सो हेल्प्स इन xylem ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या है और ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, आइए समझते हैं। देखिए बेटा, whenever we feel heated in summer season, so we start sweating। जब हमें गर्मी लगती है तो क्या होता है बेटा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर when they require cooling, जब उनको कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, so they also lose water in the form of water vapors। loss of water in form of water vapors, this is called transpiration। Transpiration is the loss of water in the form of water vapors through, कहाँ से लॉस होता है बेटा, थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स, लीव्स के लोअर साइड में यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, गार्डेड बाय किडनी शेप सेल्स, गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटल पोर होते हैं, यहाँ पे हमारे सब्सिडरी सेल्स या एपिडर्मल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज स्टोमेटल पोर। अगर गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे, स्टोमेटल पोर ओपन होगा। टर्जिड मतलब फुली इनमें वाटर होगा। एंड इफ गार्ड सेल्स आर फ्लैसिड, गार्ड सेल्स अगर फ्लैसिड होगी तो स्टोमेटल पोर भी कैसा होगा, क्लोज। So this is very important. Stomata helps in exchange of water, exchange of water in the form of water vapors. So this is called transpiration, and transpiration also helps क्योंकि ऊपर से water loss होगा। Let me change the color। जब ऊपर से water loss होगा, so it will absorb more and more water from the roots। ज़्यादा से ज़्यादा water upside में जाएगा। So this is called transpiration pool। एक खिंचाव पैदा हो जाता है बच्चों यहाँ से। So transpiration pool, we also say that transpiration pools helps in water transport, और कहीं ना कहीं it helps in cooling effect भी दे रहा है ये plants को। So it helps in temperature regulation, and the effect of root pressure in transport of plant is more important at night, क्योंकि रात के समय में रूट प्रेशर ज़्यादा होगा बेटा, क्योंकि वाटर लॉस कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा। क्योंकि ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा आर ओपन, ट्रांसपिरेशन होगी, तो वहाँ पे तो ट्रांसपिरेशन फोर्स इज अ मेजर फोर्स। लेकिन रूट प्रेशर रात के समय में ज़्यादा होगा व्हेन स्टोमेटा आर जनरली क्लोज। So as we have discussed, transport of food and other substances take place with the help of phloem, and that the transport of dissolved food materials from leaves to all parts is called translocation। It is a process of transporting dissolved
food substances, dissolved food substances from leaves to all parts of plant body. From leaves to all parts of plant body. This is called translocation. And who help it? कौन help करेगा? Phloem. So after the metabolic processes, the when photosynthesis occur, the food that forms in leaves, so it will move with the help of phloem element, that is called translocation. So phloem is a very important translocation element that helps in transport, and it is bidirectional or multidirectional. The substances are translocated in the form of sucrose. Sucrose form में mainly transport होती है जिसको cane sugar भी बोलते हैं वैसे. So these substances are derived to the storage organs of root, shoots and seeds and growing organs जहाँ भी energy की requirement है. So unlike transport of xylem, largely explained by simple physical translocation, also uses energy. The translocation में energy भी लगती है, energy आपको पता है in the form of ATP. और क्योंकि जब सुक्रोज आ जाएगा फ्लोएम एलिमेंट के अंदर, so it will increase the osmotic pressure of the tissue. तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो द वाटर विल मूव इनटू इट और इट कॉजेज द प्रेशर मूव द मटेरियल फ्रॉम फ्लोएम टू अदर टिश्यूज. सो इस तरीके से बेटा फ्लोएम से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग sugar stored in root stem tissue would be transported to the buds which needed to grow. तो यहाँ से फ्रॉम देखिए बेटा ट्रांसपोर्ट हमेशा कहाँ होता है? ट्रांसपोर्ट चीज़ों का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में अगर हम बात करें फ्रॉम सोर्स टू सिंक मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट है. अब सोर्स क्या है? सोर्स है लीव्स और सिंक में भी द पार्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट दैट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर ग्रोथ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. लाइक अभी मैंने बताया बर्ड्स में चला जाता है स्प्रिंग सीजन में क्योंकि फ्लावरिंग होगी, बडिंग बर्ड्स जो हैं दे विल फॉर्म फ्लावर्स. सो the stored food will be transported to the birds because that need energy to grow. Now coming to the questions की बात करते हैं transportation में. What are the compounds of transport system in human beings? बेटा human beings में transport system की बात करें so it contains three important components: blood vessels and heart. And if we talk about types of blood vessels, so there are arteries, veins and capillaries. Okay, four chamber heart is present in humans and blood, fluid connective tissue. What are the function of these components of the blood? It is an important fluid connective tissue that helps in transport of various nutrients, hormones, excretory products, okay, from the body and towards the body. Helps in exchange of gases, that it contains red color pigment hemoglobin that mainly helps in transport of oxygen. Blood vessels आपको पता ही है. Blood flow is in blood vessels. Arteries contain oxygenated blood. Veins contain deoxygenated blood. Capillaries helps to transport blood in visceral organs. And heart is four chamber that helps in double circulation so that our deoxygenated blood get oxygenated and transported to the all parts of plant. Coming to the next question, why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated birds in mammals and birds? बेटा mammals और birds के अंदर ही अगर हम heart को देखें तो four chamber होते हैं. ठीक है. right atrium, left atrium, right ventricle and this is left ventricle. तो four chambers है. पहले ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आएगा, वेना केवल लेकर आएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व से, फिर सारा ब्लड चला जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ? लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा थर्ड चैम्बर में, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व है या मिट्रल वाल्व है, यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड अल्टीमेटली फॉर्म्ड इनटू होल बॉडी पार्ट्स. सो दिस इज बिकॉज दे रिक्वायर मोर एनर्जी, है ना. यू कैन आंसर फॉर मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है, more energy requirement, so they need to oxidize their foods. For that they require oxygen, तो इसीलिए they have four chamber heart. So this is to separate oxygenated and deoxygenated blood. Next question,
What are the components of transport system in highly organized plants? What are the components of transport system is highly organized plant? बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाईली ऑर्गेनाइज इसमें स्पेसिफिकली आपके पास वेस्कुलर बंडल होंगे जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अभी हमने डिस्कस किया है इन दोनों को हम क्या कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स. तो ये हायर प्लांट में होता है बेटा. अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें एल्गी की या ब्रायोफाइट्स में उनमें नहीं होता है. How are water and mineral transported in plants? So you know water and minerals transported with the help of xylem. Xylem है, xylem vessels help. How food transported? So you know that for transport of food, phloem is required, and the process is called translocation. Translocation उसको बोलते हैं. So this is all about transportation in plants and animals. In our next lecture, we are going to discuss topic extinction. So I hope the topics are clear to all of you. If you have any query, you can ask me in comment section. Goodbye.